सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरे लिए दिन की शुरुआत इससे शानदार नहीं हो सकती थी। कल मेरे जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अवसर था। इसरो चेयरमैन had a meeting with me. A man who has created history. When I told him I am going to BITS Pilani, there was a sparkle in his eyes. He said, "You are going to the best institution on the planet." Coming from him, this is a great credential. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी कल्चर के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं और भारत के विधि मंत्री हैं। इनकी ड्रेस पर मत जाइए, इनकी सिंप्लिसिटी पर मत जाइए। समाज के पीड़ित वर्ग से आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर करिश्मा किया है। जिले के सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर रहे हैं। 10 साल तक सांसद रहे हैं। हर मंत्रालय के अंदर एक नया काम किया है। ही इज अ जीनियस पर्सोनिफाइड। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। And look at his urge to take to technology. जब थोड़ी कनेक्टिविटी कमजोर थी, जांटी पर चढ़ गए। टू हैव कनेक्टिविटी, ताकि हेल्थ वर्कर सही समय पर गांव पहुंच पाए। और कितना बदलाव आ गया। वो कनेक्टिविटी अब दुनिया देखती है, चमत्कारित मानती है। Professor V. Ram Gopal Rao, he had an extremely fruitful, impactful presence in IIT Delhi. और इनका तो IIT से नाता पुराना है। As director IIT Delhi and student and faculty at IIT Bombay. You are lucky to have such a vice chancellor. A vice chancellor is the soul of the university, soul of an institution. It is he who decides how you shall be calibrated globally and nationally. You are lucky. Professor Sudhir Kumar Baraiji, Director BITS, he brings on the table huge exposure experience, particularly from Indian Institute of Science, Bangalore. My greetings to all the faculty members. My utmost love and affection for all the students. From Jhunjhunu, Sri Narendra Khichad. Khichad is much more than a member of parliament. His passion and mission is education. He got into politics because he served the cause of education. And therefore, congratulations to him. Sri Subhas Punia, an MLA from the district. I had the occasion to be member of parliament from Jhunjhunu in 1989. I had the good fortune to be the first ever union minister from Jhunjhunu. And then I got a massive support from Surajgarh, a constituency he represents. We have our Jila Pramukh. Special greetings to her. It is only by chance she happens to be daughter-in-law
of the Honorable MP, but she is there in her own right. I am lucky to belong to a village to which she also belongs. She represents emergence of the girl power, the woman power. You are lucky to have a good collector. He looks very simple, but is very effective. And so is the case with SP. My greetings to all the district officials. और ये यादगार पल मैं सदा याद रखूंगा. Boys and girls, I came here 33 years ago. I came in the August company, celebrated company of the then President of India, Venkataramanji. Venkataramanji, I remember him for two good reasons. One, a genius, but I was lucky to be administered oath of office of a union minister by Venkataramanji. K.K. Birlaji was here then. That was a great occasion. और मेरा रिश्ता नाता आपसे उसी दिन बन गया था. मैं मानकर चलता हूं कि most of the boys and girls who are here तब वो धरती पर प्रकट भी नहीं हुए होंगे. मेरे सामने कौन है? I have before him not future of India. I have before me boys and girls who will shape the destiny of Bharat. You are the foot soldiers. In September 2022, that was a glorious month. When 10 years ago, in the global economy, we were at number 10 or 11. But in September 2022, we became the 5th largest global economy on the planet. और कहते हैं ना, अखाड़े में मजबूत पहलवान को धूल चटाते हो तो कुछ आनंद ही और है. अरे घोड़े पर से सवार गिरे तो ठीक है, पर घोड़ा भी साथ में गिरे तो यादगार पल बनता है ना. हमने किन को पछाड़ा? हम 5वीं महाशक्ति आर्थिक बने दुनिया में. किन को पछाड़कर? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सदियों तक राज किया. I have no doubt, boys and girls, by turn of the decade, इसी दशक के अंत तक, our Bharat will be the 3rd largest global economy. अब भारत के बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक नहीं पाएगा. Our rise is unstoppable. Our rise is incremental. You know the meaning of incremental. It will be geometrical, not arithmetic. ऐसे भारत में आज के दिन आप रह रहे हो. और कैसे इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कॉमर्स के लिए नहीं हुई, पैसे कमाने के लिए नहीं हुई, समाज को बदलने के लिए हुई. इस इंस्टीट्यूट ने जो अब तक हासिल किया है उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, पर इसकी शुरुआत सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की, उनके दर्शन मुझे 1971 में हुए. और वो किस्सा बताता हूं. मोस्ट रेस्पेक्टेड जीडी बिड़ला जी, I have the good fortune to know all your chancellors.
के बिरला जी के बारे में बताया था, आई वॉज हियर। जे बिरला जी का आशीर्वाद मुझे मिला 71 में, पर उस आशीर्वाद में मुझे एक बात नजर आई विच आई कैन नेवर फॉरगेट। एक जगह फोटोग्राफ होनी थी, लाइन में सब खड़े हो गए, उम्र मेरी कम थी, मैं आखिरी पंक्ति में था, फ्रंट रो के अंदर काफी बैठे थे। जीडी बिरला जी के साथ वो मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। उसी समय जीडी बिरला जी के बड़े भाई आए, किसी ने कुर्सी खाली नहीं की, जीडी बिरला जी ने कुर्सी खाली की, वो आखिरी रो में आ गए और मेरे पर हाथ रखा। That was a blessed moment for me. Your present chancellor is a picture of success, sublimity, humility, and a creator, a low-profile worker for the nation, Shri Kumar Mangalam Birla. I am grateful to him. He knows I am here. He was very delighted. He is known to have introduced absolute professionalism in the industry. Salutations to him. आपका मोटो जब देखता हूं तो मुझे समझ में आ गया कि देश और दुनिया में आपकी फैकल्टी ने इतना नाम क्यों कमाया है। एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल प्रेजेंस। और आपका मोटो ज्ञानम परमम बलम, नॉलेज इज पावर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नो वन इन द वर्ल्ड विल डिस्प्यूट इट। बट I will have a suggestion for you. You are the people who will make Bharat what it will be in years to come. Please never have fear in your mind. Never. But never have fear of failure. ये बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी और समाज को खत्म कर देती है कि मैं प्रयास करूंगा और असफल हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, दुनिया के चमत्कारिक विकास के मुद्दे, अनुसंधान के मुद्दे, रिसर्च और डेवलपमेंट के मुद्दे प्रथम प्रयास में नहीं हुए हैं। यू मस्ट नेवर बी अंडर द फियर ऑफ फियर। यू मस्ट नेवर फियर फेलियर। यू मस्ट ऑलवेज बी इनोवेटिव। You must always take a step to translate your idea into action. हम ह्यूमैनिटी के प्रति बड़ा अनादर करेंगे यदि अगर एक उत्तम विचार हमारे मन में आता है, an idea occurs in our mind, a brilliant idea, और हमारे दिमाग को हम पार्किंग स्टेशन कर देते हैं। आइडिया वहां पार्क रहता है, हम करते नहीं है। नो, never ever allow an idea to be parked in your mind. Take a leap of execution in the larger world. उससे आपको पता लगेगा how history has been created. You are lucky to be living in times where you have freedom कि आप क्या करोगे। हमारे समय क्या होता था, अर्जुन जी के समय क्या होता था, जन्मते कहते थे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। अरे भाई, वो जो बने उसको वो बनने दो। वो बिलियर्ड्स खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, पेंटर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है। नाउ यू हैव फुल अपॉर्चुनिटी, एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आई कैन टेल यू द एंटायर वर्ल्ड इज स्टन्ड एट अस. India is the only country in the world at the moment where there is an ecosystem where every young mind, every boy and girl can unleash full energy, exploit full potential
रियलाइज ड्रीम एंड एस्पिरेशंस, और ये हो रहा है। आपको मैं यदि अगर 2 साल की घटना बताऊं, वो आप जैसे लोगों ने की है, बॉयज एंड गर्ल्स। इफ इंडिया हैज अ प्राइड ऑफ प्लेस इन स्टार्टअप्स, इन यूनिकॉर्न्स, हमारे चाइना से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, वो यंग माइंड्स ने किए हैं। द होल वर्ल्ड इज बिफोर यू, सो नेवर हेजिटेट, टेक अ बिग लीप। और कुछ लोगों को मैं याद दिलाऊंगा, ये जो नंबर 1 पर रहने की आदत है ना, कि क्लास का टॉपर रहना है, वो टॉपर नहीं रहूंगा तो क्या होगा? हेवंस हैव नेवर फॉलन, गिरे हैं क्या आज तक? तो फिर आप जैसे अच्छे लोगों के लिए क्यों गिरेंगे? हेवंस हैव नेवर हिस्टोरिकली फॉलन। मैं क्लास में हमेशा प्रथम रहा, और इस डर के तहत जिया कि प्रथम नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत देर बाद पता लगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके बड़े फायदे होते, कुछ दोस्त बनते, कुछ लोगों से दुश्मनी कम होती। आप देखिए, यू वुड नॉट नो, अर्जुन जी को पता है, पहले अमूल नहीं होता था, पोल्सन होता था। डायरेक्टर साहब, पोल्सन होता था, वीसी साहब। और जब मैं किसी अध्यापक से चर्चा करता था तो पीछे से बच्चे क्या कहते थे पता है? पोल्सन पोल्सन पोल्सन, कि टीचर को पोल्सन लगा रहा है। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट नाउ। I had the occasion of a good education which we are having now, when I got 100% scholarship in Sunny School. As vice president, when I went to Sunny School, boys and girls, मैंने क्या कहा, और वो आप सब पर लागू है। मैंने कहा I was born biologically in village किसाना, तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, but my real birth took place in Sunny School, चित्तौड़गढ़। I am product of education। हम चारों के चारों में एक कॉमन बात है, we are here only because of education। As Governor State of West Bengal, I was involved in the formation of national education policy। Transformational है, effective है, impactful है। I'm happy it is being implemented। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आदमी अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी मनमर्जी के हिसाब से करे। पर 2 बातें मनमर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते, जिसमें मैं आपको आगाह करता हूं। एक कहता है मेरी मर्जी, मेरा पैसा, चाहे जितना पेट्रोल काम में लूंगा। अरे भाई, पेट्रोल आपकी आर्थिक ताकत से कनेक्टेड नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो समाज के हैं, वो कलेक्टिवली हैं, वो पैसे की ताकत से उपयोग नहीं हो सकता। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, एनर्जी, वाटर हैज टू बी ऑप्टिमल। वी ऑल हैव टू सब्सक्राइब टू इट। आवर मनी पावर, आवर पॉकेट पावर कैन नॉट डिसाइड कि हम कितना पेट्रोल काम में लेंगे। वी आर ट्रस्टीज, ये आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा, यू आर थिंकिंग माइंड्स, यू आर डिसनिंग माइंड्स। आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। यदि अगर पार्लियामेंट में गतिविधि ठीक नहीं चल रही है, पार्लियामेंट अ प्लेस फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, और उस जगह यदि अगर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन होता है, आपके यहां घंटी बजनी चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव सही काम क्यों नहीं कर रहा है। You are the ultimate stakeholders in democracy। आपसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नेंस का कोई नहीं है। I would therefore appeal to you कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, एक काम कीजिए, डोंट बी इन साइलेंस मोड, अपने विचार को व्यक्त कीजिए।
G20 सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, सपना भी नहीं देखा था। सपना क्यों नहीं देखा था? 89 में एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना और खुद देखा कि भारत का सोना फिजिकल शेप के अंदर हवाई जहाज से विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहे। वी आर डिक्लेयर्ड अ कंट्री दैट कैन सस्टेन। क्या नजारा था! 1-2 बिलियन डॉलर हमारे पास नहीं थे, 15 दिन तक का खजाना नहीं था। आज जब देखता हूं ओवर 600 बिलियन डॉलर्स रिजर्व है। ये मुद्दा ही नहीं है। आज से 10-12 साल पहले दुनिया के अंदर कहते थे फ्रेजाइल 5। ब्राजील, टर्की, इंडोनेशिया, उसमें भारत का नाम था। फ्रेजाइल 5 मीन्स दे वर अ बर्डन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। छू दोगे तो टूट जाएंगे, इस प्रकार की हालत थी। कहां फ्रेजाइल 5, कहां बिग 5? वी आर नाउ बिग 5। यह जर्नी क्यों हुई? You can imagine my pride, boys and girls. The World Bank के चेयरमैन बंगा जी G20 के अंदर कहते हैं कि भारत ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है 6 साल में, वो 47 साल में भी संभव नहीं था। 47 years। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं, और क्यों नहीं कहें? दुनिया का जो ट्रांजैक्शनल है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल जमाना था, कहते थे 10 पैसा ही गांव पहुंचता है। आज के दिन न बिचौलिया है, न ब्रोकर है, न कटमनी है, पैसा सीधा जाता है। एंड आवर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बॉयज एंड गर्ल्स, इन 2022 क्या थे? Our digital transactions were 4 times the collective transactions of USA, UK and France and Germany। सोचा था कभी? इनमें एक एक देश महारत है। इन चारों को जोड़ लो, 4 से गुना कर दो, तो भी हमारा भारत आगे है। यह हमारी उपलब्धि है। हर भारतीय एकलव्य है। उसको कोई पढ़ाए, कोई सिखाए या न सिखाए, एकलव्य की तरह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इंटरनेट यूसेज में देखिए, पहले लोग कहते थे कि स्मार्टफोन को कैसे यूज करेंगे। अरे गांव का हर व्यक्ति इतना नॉलेजेबल है, पढ़ाई में कम हो सकता है। जब इंटरनेट यूसेज पर आते हैं, पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, एंड यू बॉयज एंड गर्ल्स आर मोर इन्वॉल्व विद इट, पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इन 2022 इंडिया का चाइना और यूएसए दोनों को मिला दो, उससे भी ज्यादा है। भारत के विजेंद्री प्राइम मिनिस्टर ने जब मेरा इंट्रोडक्शन राज्यसभा में कराया तो उन्होंने कहा कृषक पुत्र। मेरा मन क्यों खुश नहीं हो? आज के दिन इस टेक्नोलॉजी का फायदा 11 करोड़ फार्मर ले रहे हैं। साल में 3 बार सीधे उनके खाते में पैसा आता है, बिना कमीशन के, बिना कट के, सबके। और अब तक ये 2,50,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बॉयज एंड गर्ल्स, अ गवर्नमेंट में बी पावरफुल टू सेंड मनी, but what is more important, what is more commendable,
कि किसान भी तैयार है रिसीव करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का यह मुद्दा देखकर दुनिया चकित है। भारत की बात आज दुनिया सुनती है। I have been abroad on 3 occasions and I know the power and might and respect and image our Bharat has. Boys and girls, you are living in times where you have to look for opportunities. You have to give passage to your talent, to your aptitude. You have to have a directional approach. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है? द लेडी प्रेसिडेंट ऑफ IMF, इंडिया is the brightest economy in the world today. It is hot favorite destination of opportunity and investment. ये आपको ग्रैब करनी है। I have no doubt आप ऐसा हर हालत में करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपके लूंगा, इसलिए ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, पर 2 अनाउंसमेंट करूंगा। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। और दुनिया में भारत का क्या इमेज हो, आई विद द परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर हु हैज बीन ग्रेशियस एंड द डायरेक्टर, there will be MOU between Indian Council of World Affairs and BITS, and that will be signed within 4 weeks. The Director, Indian Council of World Affairs, Ambassador Thakur, is enormously talented lady. उससे आपको पता लगेगा कि G20 का दबदबा क्या रहा है। देश का कोई कोना नहीं बचा है जहां G20 की 200 मीटिंग्स नहीं हुई हो। 58 लोकेशंस पर हुई हैं। यह अचीवमेंट है। दुनिया के नेताओं ने जब कहा कि अब भारत जैसा G20 कोई कर नहीं पाएगा। But boys and girls, I'll tell you 3 important things about G20. Success story you'll hear from Indian Council of World Affairs. पहला, African Union. European Union was a member. यूरोपियन यूनियन के कौन से देश हैं? वो देश हैं जिन्होंने हम पर भी राज किया था। अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना, it is reflection of essence and our civilization ethos. ये पहले किसी के दिमाग में नहीं आया, ये नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में आया अफ्रीकन यूनियन का। सेकंड, जो आप लोगों के भविष्य को निर्माण करेगा, जो कॉरिडोर बनाने की बात कही है, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, ये गेम चेंजर है, दुनिया के लिए गेम चेंजर है। दुनिया ने ऐसा करिश्मा कोई नहीं देखा जो हुआ। कोविड में जब हम सफर कर रहे थे तो हमने औरों की मदद भी की, खुद की भी की। उसी तरीके से ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है, जिन देशों की पहले कोई बात नहीं करता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको एक ताकत के रूप में उभार दिया है। दे आर अ पावर। तो भारत आज के दिन हर परिस्थिति में दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, पर इस नेतृत्व को एक्सेलरेशन आप लोग देंगे, एजुकेशन देगा। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल, इफेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म to make lives of the people better. तो एक अनाउंसमेंट तो मैंने कर दिया। दूसरा अनाउंसमेंट वीसी साहब को कहूंगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है। भारत मंडपम को देखता हूं
तो दुनिया के चुने हुए कन्वेंशन सेंटर से भी ऊपर है। और यशोभूमि देखता हूं तो भारत मंडप से भी बड़ा है, और 1 महीने में दोनों का उद्घाटन कर देना कोई छोटी बात नहीं है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, 2.5 साल में बिल्डिंग नहीं बनी है, अंदर सब काम हुआ है। आई विल रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल वाइस चांसलर कि अपने यहां से 50 to 100 स्टूडेंट्स पीरियोडिकली, बाकी सबके सब जाए, आर इनवाइटेड, विल बी माई गेस्ट एट राज्यसभा। और आप डेस्टिनेशन तय अपने आप कीजिए, और 4 डेस्टिनेशन मैं सजेस्ट करूंगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दंग रह जाएंगे, देश के हर कोने से आपको प्रतिभा वहां नजर आएगी। भारत मंडपम, यशोभूमि, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड वॉर मेमोरियल, 5 तो अवश्य देखिए। माई ऑफिस विल बी इन टच विद द ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर, और अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं है, क्योंकि अर्जुन जी आप लोग हर चीज को मुमकिन कर देते हैं। आजकल आप अपने दिशा से चलते हैं, यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड, पर राजनीति में डिले हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पद से कही हुई बात की गरिमा है। आई हैव टू लिव अप टू द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ माय प्रीडिसेसर्स, दे वर जायंट्स। इसको जल्दी फलीभूत करेंगे, समय अवधि में करेंगे। जो समय वाइस चांसलर साहब सजेस्ट करेंगे, वी विल एग्जीक्यूट एज पर दैट शेड्यूल ओनली। अंत में, बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, ये जो बिल हुआ है और राज्यसभा में सर्वसम्मत से हुआ है, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स इपोकल डेवलपमेंट। धीरे धीरे हमने देखा था कि महिला सरपंच बन गई तो उसके आगे खड़ा हो गया एक व्यक्ति, मैं सरपंच पति हूं। अरे भाई आप क्या हो? मैं सरपंच पति हूं। अरे भाई सरपंच जी को आने दो, मैं प्रधान पति हूं, मैं जिला प्रमुख पति हूं। वो बात खत्म हो गई है। वी हैव अ वेरी टैलेंटेड जिला प्रमुख है। और जहां भी मैं ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं को देखता हूं, who are district superintendent of police, district magistrate, secretary to the government of India, amazing performance. अरे बच्चों आप परेशान मत हो, अपने को चुनौती नहीं दे रहे हैं, अपने इनको हक दे रहे हैं। It is their entitlement. Society cannot grow if you do not give justice to 50% of humanity. दुनिया अचंभित है, और मेरे पास मैसेजेस हैं कि भारत में आपने कर कैसे दिया ये। हमने कहा हम ऐसे कालखंड में हैं जहां हर चीज को मुमकिन कर रहे हैं। चंद्रयान 3 पर जाकर तिरंगा स्फोट कर दिया। पूछेंगे साइंस क्विज में, वेयर इज तिरंगा पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लैंडेड? Where is Shiv Shakti point where Chandrayaan 3 landed? Which is the first country that landed on south pole of moon? Bharat. Which is that country? Which is that country that has sent to moon a vehicle with least expenditure? आप देखिए हमारी शुरुआत क्या थी, और पिछले 10 साल में दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसका सैटेलाइट इसरो ने जारी नहीं किया है। वी हैव मेड मनी, वी हैव डन इट। तो ये करिश्मा करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और हम कर कर रहेंगे। पर जब मोर नाचता है, पंख देखता है, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। पर जब अपने पांव की तरफ मोर देखता है
तो मोर थोड़ा परेशान हो जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों का हाजमा भारत की विकास यात्रा को देखकर गड़बड़ क्यों हो जाता है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए दुनिया के चक्कर लगाते हैं। अरे कहीं कहीं तो मिल ही जाएगा कोई नहीं आपकी बात सुनने वाला। वी मस्ट निप इन द बड एंटी भारत नैरेटिव। आज के दिन जब यह कहा जाता है हार्वर्ड के अंदर कि इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेरिट पर एडमिशन नहीं होते हैं, यू ऑल आर प्रूफ ऑफ इट। योर एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज मेरिट। We cannot allow anyone to taint, tarnish and demean our institutions. पहले लगता था कि कांस्टेबल इसको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े बाप का बेटा या बेटी है। वो कल्चर खत्म हो गया और उसमें आप लोगों ने कर दिया, सोशल मीडिया ने कर दिया नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बात कुछ लोगों को समझ में अब भी नहीं आ रही है। जब जाना चाहिए कोर्ट, आते हैं सड़क पर। वी कैन नॉट एनकरेज सच काइंड ऑफ अप्रोच। जब इंडिया का रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम है, व्हाई शुड वी टेक टू स्ट्रीट्स? व्हाई डोंट वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ? अंत में ये कहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। करप्शन is killer of democracy. Corruption is killer of growth. Corruption is killer of those who need assistance of the government. In 10 years, power corridors have been totally neutralized of power brokers. पता नहीं वो कहाँ चले गए। न तो उनकी चिट्ठी आती है, न उनका पत्र आता है। ये जमात ही खत्म हो गई है। I'm thankful to the government of which Mr. Arjun Meghwal is a part, कि power brokers को खत्म करना, to sanitize power corridors is the greatest achievement that will help you all, because meritocracy will take precedence. I am thankful to all of you and the Vice Chancellor, Director, members of the faculty, for making available to me this great opportunity. Thank you so much.